Okay, guys, so let's start with the session. I'll be sharing my screen. Okay, so I hope you're able to see my screen. Just let me know. Guys, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so guys, we are going to have a small session on how to get started with Python and machine learning, right? So it's going to be around like 1 hour, one and a half hour session. And the main agenda would be we'll be tackling Python and machine learning separately as they are different topics. So in both of these topics, we'll cover three things. First, we'll discuss what the topic is, like what is Python. Then we'll discuss why should we learn it, right? Why should we learn Python or machine learning, okay? And then we'll discuss how can we learn machine learning or Python, okay? So the three topics would be what is X, why should you learn X, and how should I learn X. That is how it will be discussed, okay? So the first focus would be on Python, okay, because machine learning is comparatively difficult when you compare it to Python, okay? So guys, I guess you already know Python is a programming language, right? So uh, it's a programming language like C or Java or PHP or any other programming language. And you already know what programming languages are. So programming languages are these languages that you type inside your computer in order to communicate with your machine or computer, right? आपको अपने machine को instructions देने हैं. अब instructions बहुत simple भी हो सकते हैं, like turning on your bulb, CFL bulb, or I don't know, switching something, right? Or pressing a button on your remote. These are very simple instructions. But imagine कि आपको यूएस में रखे हुए एक डेटाबेस में चेक करना है कि कोलकाता का एक बंदा उस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट? तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू डू सम ऑपरेशंस, राइट? एंड उन ऑपरेशंस को व्हाट यू डू इज यू पुट देम इन लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स लाइक इफ एल्स, फॉर लूप्स. तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए, राइट? सो दैट आप मशीन से और इफेक्टिवली बात कर पाओ, राइट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट तो ये है. पाइथन क्या है? पाइथन के बारे में आई टेल यू. पाइथन इज एन ओपन सोर्स application programming language. So can anyone tell me what is an application programming language? Actually दो तरह का programming language होता है. One is system programming language and second is application programming language. Can you give me one example of anyone? There are around I guess 28 people in this meeting. Can you tell me one example of a language which is a system software, system programming language? Anyone? Can you tell me what is a system software? You must have studied this in your school. What is a system software? Anyone? You can speak into your microphone or you can chat. Guys, anyone? Just to start a discussion. Okay, fine. So I'll tell you, system softwares are those softwares which are used by other softwares. I'll give you one example. Operating system. So let's say if you are making an app like Swiggy, right? Now that app Swiggy will require functionalities of GPS, right? आप जब Swiggy open करते हो तो आपका app automatically डिटेक्ट करने लगता है कि आपका लोकेशन क्या है, एंड दिस इज डन यूजिंग द जीपीएस. अब अगेन जिसने स्विगी को प्रोग्राम किया है वो इस चीज का टेंशन नहीं लेता कि उस मोबाइल में कौन सी कंपनी का जीपीएस चल रहा है. हार्डवेयर का टेंशन नहीं लेता. ये टेंशन कौन ले रहा है? एंड्रॉइड ले रहा है, विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सिमिलरली लेट्स से you are playing a movie from a pen drive or hard drive. आपने मूवी देख रहे हो आप पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव में लगा के, राइट? नाउ obviously there should be some software which will recognize or which will rather find out a way using which the computer will be able to talk to the pen drive, because data कहाँ से आ रहा है? पेन ड्राइव से, राइट? तो यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं. आप जब सॉफ्टवेयर, आप जब पेन ड्राइव लगाते हो तो आपने नोटिस किया होगा वहां लिखा आता है डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलिंग, राइट? तो again that is an example of system software. So system software is that software
which is used to control the hardware directly, and it is used to help other softwares. Okay, whereas application software is a piece of software that is used by the users directly, और उसका हार्डवेयर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, राइट? हार्डवेयर का जरूरत देखो सभी को है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं होता. वन एग्जांपल कुड बी any website that you use is an example of application software, right? Similarly, any mobile app that you are using is again application software. Any game that you have played is a application software. Okay, तो ये दो broad categories है सॉफ्टवेयर में, और दोनों को बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होते हैं. ठीक है, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जो सबसे प्रीमियर लैंग्वेज है पूरे दुनिया में, दैट इज सी. आपने नाम सुना होगा, प्रोबेबली आपने उसके ऊपर काम भी किया होगा. सी इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग विच यू कैन बिल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसीलिए आपके कॉलेजेस में उसको मैंडेटरी बना के रखा गया, राइट? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, और वहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज अभी तक तो जावा था. जावा आप नाम सुना होगा, बट अब धीरे धीरे पाइथन इज रिप्लेसिंग दैट, राइट? तो पाइथन इज अ ओपन सोर्स हाई लेवल मतलब आप इंग्लिश में कोड लिखते हो, application programming language. There is one more term. Python is also a general purpose programming language, which basically means कि आप Python को यूज करके मल्टीपल चीजें कर सकते हो. You can either make websites, or you can make softwares, or you can make games, or you can do machine learning and stuff. तो बहुत चीजों में वो काम आता है. ठीक है, तो आई होप रफली पढ़ना है. क्यों पढ़ना है इसका डिस्कशन हम लोग एक बार करते हैं. जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को कॉन्स्टेंटली मिस इंटरप्रेटेड, आई एम सॉरी, मुझे गलत इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली मिलता था कि यार ये पढ़ लो या ये पढ़ लो. सीनियर्स कुछ और बोलते थे, टीचर्स कुछ और बोलते थे. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, बैक इन माय कॉलेज, I used to research this on Google Trends. Okay, so if you have a doubt कि Python पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, I'll show you one thing on Google Trends, और उसको देखने के बाद you will understand कि okay, Python पढ़ना चाहिए. Okay, so I hope you are aware of Google Trends. So Google Trends is a website जहाँ पर Google के जितने भी search terms होते हैं उनके बारे में डेटा रखा जाता है. ठीक है, तो what I will be doing is I'll be searching for Python programming language. See, ये ऑप्शन आ रहा है मुझे Python programming language का, और over here I'll do slight changes, like instead of United States I'll select India, and instead of past 12 months I'll be selecting past 5 years 2015 से. और दिस इज द ग्राफ गाइज, यहाँ पे देखो एक बार. दिस इज द ग्राफ कि पाइथन को गूगल पे कितनी बार सर्च किया गया इंडिया में लास्ट 5 सालों में. ओके, और ये एक्स एक्सिस पे डेट है और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट ओवर टाइम है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट 2015, पाइथन का पॉपुलैरिटी स्कोर was around 25-30, right? And you can see there has been a constant increase up till today, जहां पर अगर आप देखो आज की रेट में, मतलब एकदम आज सर्च अगर करो तो इट्स क्लोज टू 95, इनफैक्ट 99 अभी करंट विंडो में. इनफैक्ट देयर वाज अ डिप इन बिटवीन. कोई गेस कर सकता है? मार्च के लास्ट 10 डेज में देयर वाज अ डिप. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? एनीवन? Guys, you can speak in your microphone if you want to. At least the class would be interactive. कोई बोलेगा ये डिप क्यों था? किसी को पता है आंसर? ये डिप क्यों था यहाँ पे? ओके, चलो, obviously you know the answer, right? मतलब this is because of coronavirus, right? और before this dip it was around 100, and even after this dip, अब जब लोग घर से काम करना स्टार्ट कर दिए तो फिर से गूगल पे पाइथन बहुत सर्च हो रहा है. तो यू कैन सी कि पाइथन हैज दिस इंक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ पे पॉपुलैरिटी उसका पिछले 5 सालों में इंडिया में बढ़ा है. अगर आप थोड़ा और नीचे जाओ तो यहाँ पर यू कैन सी स्टेट वाइज स्कोर कि कौन से स्टेट्स पाइथन को ज्यादा यूज करते हैं. एंड देयर इज नो डाउट कि सबसे ज्यादा पाइथन यूज हो रहा है इन कर्नाटका, विच इज बिकॉज ऑफ बैंगलोर, राइट? बैंगलोर इंडिया में टेक की बात करो तो सबसे आगे है बाकी सिटीज से.
और ऐसे भी इन जनरल आप जब देखोगे तो ज्यादा जो डीपर शेड्स ऑफ ब्लू हैं दे आर फ्रॉम गुड सिटीज इन द सेंस जहाँ का टेक कल्चर बहुत अच्छा है, राइट? सो यू कैन सी हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, यहाँ पर गुड़गांव. सो बिकॉज ऑफ दीज सिटीज यहाँ पर देयर इज अ डीपर शेड ऑफ ब्लू व्हिच मींस पाइथन इज यूज्ड मोर. वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया स्टिल कैचिंग अप, उतना नहीं है. अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा. व्हाट आई विल डू इज आई कैन कंपेयर दिस एंटायर स्टैक with some other programming language. So I'll compare Python with Java, its main competitor. So, okay, so I somehow selected JavaScript. So I'm sorry, I'll be changing that. So it should be Java programming language. Okay. So guys, this is the graph. Red is Java and blue is Python. And you can see जब आप 2015 के अराउंड का बात कर रहे हो तो उस पॉइंट पे पाइथन का पॉपुलैरिटी स्कोर वाज इन कंपैरिजन टू जावा इट वाज 10. जावा हैड ऑलमोस्ट अ परफेक्ट पॉपुलैरिटी स्कोर लाइक 100. और उसके बाद देखो ये ग्राफ से ये तो समझ में आ रहा है कि जावा ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, राइट? बट जैसे जैसे आप टाइम आगे बढ़ा रहे हो यू कैन सी देयर इज अ डिप इन द पॉपुलैरिटी ऑफ जावा अप टिल दिस पॉइंट जहां पे दोनों का डिप किया. और अब ये देखो पाइथन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री जावा को ओवरशैडो कर रहा है, ठीक है? तो आई गेस ये ट्रेंड्स देख करके आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि Python is a language which is getting famous day by day, right? In fact, अगर आप patterns notice करो, बहुत सारी IT कंपनीज जो आपके कॉलेज में आती होंगी लाइक Infosys और Wipro और TCS, अब उनके एग्जाम्स में Python इंक्लूड हो गया. इनफैक्ट देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड InfyTQ. वो लास्ट ईयर जब हुआ था तो कम्प्लीटली Python में हुआ था. Infosys का एग्जाम है, राइट? तो एवरी मेजर IT प्रोवाइडर, IT सर्विस प्रोवाइडर, दे आर अडॉप्टिंग Python. एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि वेस्ट में एज इन यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में पाइथन का डिमांड भाग रहा है और वो सेम ट्रेंड इंडिया में आ रहा है, ठीक है? तो ये तो हो गया कि पाइथन सच में हो रहा है फेमस, ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से पाइथन फेमस हो रहा है. ओके, सो सिंस मैंने पाइथन में काफी काम किया है पिछले 3 से 4 साल, तो और मैंने जावा में भी काम किया और मैंने सी में भी काम किया है. मतलब सी में मैंने कॉलेज में पढ़ाई की थी, टू बी ऑनेस्ट सी में कभी काम नहीं किया मैंने. तो आई नो ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तो आई कैन गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है पाइथन में अगर आपने पाइथन में कोडिंग नहीं किया तो. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, मतलब क्या है इसका कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग्स हुआ, एरे नहीं होता यहाँ पे, लिस्ट होता है, डिक्शनरीज होता है, सेट्स होता है. तो यहाँ पे जो आपके डेटा टाइप्स है ना ये बहुत पावरफुल होते हैं. अब पावरफुल होने का मतलब क्या है कि एज अ प्रोग्रामर मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मुझे बहुत ऑप्शंस देते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से तुमको क्या करना है, तुमको चेक करना है कि तुमको ये करना है कि तुम्हारा स्ट्रिंग को तुमको रिवर्स करना है. लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग कोलकाता, तुमको उसको रिवर्स करना है, राइट? अब इफ यू वांट टू डू दिस इन सी, तुमको ये कोड मैन्युअली खुद से लिखना पड़ेगा, राइट? मतलब ये तो फिर भी बड़ा ऑपरेशन है. अगर तुमको ये भी करना है ना कि तुम्हारे कैरेक्टर एरे का लेंथ कितना है या कुछ भी इस तरह का लेंथ भी कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग का, तो फॉर दैट यू विल हैव टू राइट योर ओन कोड, राइट? और पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन तुमको पहले से बिल्ट इन फंक्शंस दे रहा है पहले से ही, राइट? मतलब पाइथन में देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रिवर्स यूजिंग व्हिच यू कैन इजीली रिवर्स अ स्ट्रिंग, राइट? सो every data structure that Python has, it has got tons of functionalities. So आप क्या करोगे एज अ प्रोग्रामर, आपका काम बहुत इजी हो जाता है. छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, आपको बस फंक्शंस को कॉल करना होता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे सोचते हैं कि यार फिर तो कोई फायदा नहीं है, हम तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, सारा का सारा काम तो पाइथन कर रहा है. बट गाइज दैट मेंटालिटी इज नॉट करेक्ट, राइट? आप ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जब आप कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, योर फोकस शुड बी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. जल्दी से प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है, राइट? वहां पे आप ऐसे दिल पे नहीं लोगे कि यार सब कुछ मैं क्यों नहीं कर रहा. अगर आपको ऐसे दिल पे लेना है तो फिर यार आप जाकर के लैपटॉप खुद से बनाओ, दूसरे के बनाए हुए लैपटॉप पे काम मत करो. प्रोसेसर अपना खुद का बनाओ, इंटेल का क्यों यूज कर रहे हो? सो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देयर इज अ फिलॉसफी कॉल्ड
डू नॉट री इन्वेंट द व्हील. एक बार जो चीज बन गया उसको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है. इंस्टेड उसको यूज करके कुछ और अच्छा बनाओ. दैट्स द होल फिलॉसफी. और पाइथन यही फिलॉसफी फॉलो करता है. पाइथन बोलता है कि बॉस तुम अपने बिजनेस पे फोकस करो, तुम अपने बिजनेस लॉजिक के ऊपर फोकस करो, ये छोटा मोटा काम मेरे ऊपर छोड़ दो. यू कैन इमेजिन मुन्ना भाई एंड मुन्ना भाई देखा होगा शायद आपने. सो इमेजिन योरसेल्फ एज संजय दत्त द प्रोग्रामर एंड पाइथन विल बिकम योर सर्किट अरशद वारसी. उस तरह का रिलेशनशिप. पाइथन बोलते सीधे भाई मैं हैंडल कर लूंगा. इट्स लाइक दैट. और वो जो चीज होता है ना वो आपको एज अ प्रोग्रामर बहुत पावर देता है. मैं खुद जब वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ पाइथन में, आई फील सो गुड बिकॉज मेरे को छोटे छोटे काम के लिए कोड नहीं लिखना है. ठीक है. तो अगेन ये एक्सपीरियंस से आप सीखोगे. सेकेंड, there are multiple features. There are like so many features which will make you feel very good when you code in Python. One such feature is actually two such features are dynamic typing and dynamic binding. So if you remember, आपको ये C या Java में क्या करना होता है, वेरिएबल्स को यूज करने के पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट? इंट A, राइट? इंट B. लेकिन पाइथन में क्या है कि पाइथन में यू डोंट हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. पाइथन में आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करना पड़ता. इनफैक्ट आई विल शो यू क्विकली, आई विल शो यू दिस सॉफ्टवेयर जहां पे मैं पाइथन में कोड करता हूँ. सो दिस इज आइडल. ओके, सो यहाँ पे पाइथन में आप कोड कर सकते हो. यू कैन इजिली सी यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है. एंड आई विल नॉट राइट समथिंग लाइक दिस इंट a. इंस्टेड आई विल सिंपली राइट a इज इक्वल टू 4. एंड व्हेन आई विल प्रिंट a, you can see कि easily print हो रहा है. So there was no requirement to initialize a variable. Python ने internally automatically समझ लिया कि variable पहली बार आया है तो बॉस कोई बात नहीं, हम उसको directly use कर लेंगे. ठीक है. Second, there is a feature called dynamic binding. Dynamic binding बोल के एक feature होता है. ये भी बहुत सही feature है. इसमें क्या होता है कि generally क्या होता है जब आप C में कोई variable create करते हो तो आप उसका जो data type decide कर लिए वही डेटा टाइप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा. लाइक अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 5, तो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ a बट यू कैन ओनली चेंज इट विथ इंटीजर वैल्यूज, राइट? पाइथन में ऐसा ट्रू नहीं है. देखो ऊपर a का वैल्यू वाज 4, यहाँ पर आई कैन राइट a इज इक्वल टू कोलकाता विच इज अ स्ट्रिंग. और अब मैं अगर प्रिंट a करूं फिर से तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई लाइक दिस, राइट? एज अ प्रोग्रामर यू वांट a cleaner way of writing code without कुछ ज्यादा सोचे. आप सीधे लॉजिक पे फोकस कर पाओ रादर देन आप सिंटेक्स पे अपना दिमाग लगा रहे हो. ये पाइथन आपको देता है. इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि पाइथन में कोड करना और सी और जावा में कोड करना कैसे डिफरेंट है. पाइथन में सी और जावा में कोड करना इज लाइक स्टेइंग विथ योर पेरेंट्स. हर चीज के लिए रूल्स हैं. खाना डाइनिंग टेबल पे खाना है, टीवी ड्राइंग रूम में देखना है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, राइट? इट्स लाइक staying with your parents. But when you are coding in Python, it's like staying with your friends in hostel. आप बोल रहे हो भाई मैं यहाँ पे सो जाऊं, वो बोल रहा है यार तू वॉशरूम में सो जा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा. It's like that, right? The third thing is easy to learn syntax. मैंने कम से कम 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया होगा अलग अलग. I don't know शायद, but I can tell you that कि सबसे easy इनिशियली सीखने में पाइथन था बिकॉज ऑफ इट्स इजी सिंटेक्स. मतलब बहुत इजीली आप सीख जाओगे. देयर आर नो सेमीकोलंस इन्वॉल्वड, देयर आर नो कर्ली ब्रेसेस इन्वॉल्वड. यू कैन सी मैंने अभी बस एक लाइन लिखा प्रिंट ए और मेरा आउटपुट आ गया. मुझे इंक्लूड ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ा. तो इट हैज अ वेरी इजी टू लर्न सिंटेक्स. नो डाउट कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं पाइथन में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको सीखने में कम टाइम लगेगा. इट्स लाइक वेरी इजी टू लर्न इनिशियली. फिर कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट होते हैं बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके. And the fourth thing is support of modules. So Python का सबसे बड़ा अभी आज की डेट में जो फीचर है, जो सबसे बड़ा इसका खूबी है, it's there are so many libraries in Python. I guess you know libraries, right? So libraries are basically pre-written functions जिनको आप use कर सकते हो, right? अब Python को लोग इतना प्यार करते हैं ना, और Python में लोगों को कोड करने में इतना मजा आता है कि what they do is they do it for as hobby पर्पस, राइट? मतलब मैं अगर खाली बैठा हूँ और मैं स्पोर्ट्स का बंदा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ, तो मैंने खाली बैठ करके पाइथन में एक स्पोर्ट्स का लाइब्रेरी बना दिया. सिमिलरली अगर कोई और बंदा म्यूजिक इंडस्ट्री में है, उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक लाइब्रेरी बना दिया. सो ऐसा क्या हो रहा है पिछले 10 सालों में हर इंडस्ट्री में पाइथन का कोई ना कोई लाइब्रेरी बन चुका है, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग तो वहां पे numpy pandas जैसा लाइब्रेरी है. अगर आप बात करो वेब डेवलपमेंट का
तो वहाँ पे Django Flask जैसा लाइब्रेरी है. If you talk about web scraping, Beautiful Soup जैसा लाइब्रेरी है. If you talk about game development, Pygame जैसा लाइब्रेरी है. If you talk about database development, SQL Alchemy जैसा लाइब्रेरी है. तो for every task that you will do, कोई ना कोई चीज करोगे ना, वो चीज के लिए पाइथन में आपको पहले से लाइब्रेरी मिल जाएगा. और लाइब्रेरी मिलने का मतलब क्या है? काम इजी हो गया. इसीलिए बहुत सारी नई कंपनीज तुरंत के तुरंत पाइथन यूज करती हैं और अपना काम स्टार्ट करती हैं. एंड दीज आर द 4 मेजर रीजंस बिकॉज ऑफ विच पाइथन इज गेटिंग एक्सट्रीमली फेमस. एंड यू कैन सी, मैंने आपको दिखाया था वो ग्राफ. ठीक है, तो गाइज वी हैड अराउंड 20 मिनट्स ऑफ डिस्कशन. हमने 2 चीजें डिस्कस की. फर्स्ट, व्हाट इज पाइथन. सेकेंड, सच में फेमस हो रहा है कि नहीं. और थर्ड, फेमस क्यों हो रहा है. राइट. और अब लास्ट 5 मिनट्स में आई विल जस्ट डिस्कस द टॉपिक्स कि अगर आप इस सेमिनार, इस वेबिनार के बाद इफ यू आर प्लानिंग टू लर्न पाइथन, व्हाट शुड यू लर्न. ओके, सो यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स. ओके, बेसिक सिंटेक्स सीखना होगा सबसे पहले आपको. लाइक वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेना है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर लूप्स कैसे चलाए जाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं. इस तरह की चीजें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी. फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. आई डोंट नो यू इफ यू आर फेमिलियर विद दैट और नॉट. द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हर लैंग्वेज में होता है. जो भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा का बात कर लो, पीएचपी का बात कर लो, सभी जगह पे यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट. इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट. ओके, तो ओपी आपको सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से. ठीक है. थर्ड, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू वर्क विथ डेटाबेसेस. ठीक है, बोथ नो सीक्वल डेटाबेसेस एज वेल एज सीक्वल डेटाबेसेस, दोनों के ऊपर आप काम करना सीख सकते हो. ओके. The fourth thing that you should learn is how to make a GUI using Python. ठीक है, तो जनरली लोग 2 चीजें प्रेफर करते हैं. either they do proper GUI development using this library called tkinter, or what they do is they learn web development and they merge their knowledge of web development with Python and they make interactive websites. Okay, or finally you can use some advanced, you can learn some advanced topics. Python में कुछ बहुत advanced topics होते हैं, जैसे कि multi threading एक चीज हो गया. फिर आपके कुछ concepts होते हैं, generators, decorators, iterators बोल के. इस तरह के कुछ concepts हैं जो आपको master करने पड़ेंगे in order to become a good Python programmer. ठीक है, तो you should start with basics, then you should go to object oriented programming, then you should go to databases, then GUI development, and finally you should do some proper advanced stuff in Python. Okay, that is how you should proceed. What I will do is I'll share my WhatsApp number after this session. तो अगर आपको कुछ doubts होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो. Meanwhile, we are done with the Python part. Now we'll move into the machine learning part. So before doing so, guys, if you have a doubt, you can ask me right now. Anyone, if you have a doubt, you can type in your chat box, or you can directly ask me on the microphone. It's your choice. Anyone with any doubts, jobs क्या होते हैं, internship कैसे होती है, if you have any doubts you can ask me. I'll give you 1 to 2 minutes. You guys have been very silent, unlike other crowds. क्या हो गया यार, इतना गुस्सा हो गया? थोड़ा बात करो. Anyone? कोई doubts नहीं है. इतना brilliant पढ़ा है मैंने. Difference between C and Python. बताया था, C is a system programming language using which you can make system softwares like operating system, device drivers, networking software. और Python is an application programming language जिसको use करके आप applications बनाते हो. Applications मतलब websites और mobile apps. Actually Python से आप mobile apps नहीं बनाते, but वो applications के अंदर आता है. You can also make softwares like Google Chrome or VLC Media Player. Okay, तो यही major difference है. और फिर अगर आप और भी बातें कर सकते हो, like C is faster in comparison to Python because Python internally C में बना है, तो Python का कोड पहले C लेवल पे जाके एग्जीक्यूट होगा और फिर वो मशीन के पास जाएगा. तो थोड़ा फास्ट होता है C, बट यूजेबिलिटी का बात करो तो Python is much better in comparison to C. बट दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन एज सच है नहीं, because both are like completely different things. Apple क्या मतलब, अगर आपको Python को कंपेयर करना है तो आपको Python को कंपेयर करना चाहिए Java से, राइट? क्योंकि दोनों सेम काम करता है. ठीक है. ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यूजिंग Python. See, training opportunities
ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज तो कुछ होता नहीं है, बहुत सारी कंपनीज आपको ट्रेनिंग कराती हैं एंड यू हैव टू पे देम, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। इंटर्नशिप्स के बारे में इफ यू टॉक, तो इंटर्नशिप में आपको डायरेक्टली एज पाइथन प्रोग्रामर इंटर्नशिप नहीं मिलेगा। ईदर यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर यूजिंग पाइथन, और यू कैन बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर यूजिंग पाइथन अगेन। तो आप पाइथन को यूज करके क्या कर रहे हो उसका डिमांड है इंडस्ट्री में, रादर देन इस चीज का डिमांड कि आपको पाइथन आता है। So generally what people do is, people of your age who are in college, what they do is they first learn Python and then they implement it to learn something else like web development or machine learning, और फिर उन दोनों चीजों का इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। ठीक है, आप एक बार इंटर्नशाला पे जाके सर्च करो, यू विल सी कि बहुत सारे डेटा साइंस के आपको जॉब रोल्स मिलेंगे या फिर वेब डेवलपमेंट के जॉब रोल्स मिलेंगे। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर जॉब, पाइथन और अदर लैंग्वेज? इस पॉइंट पे सी, पाइथन इज ऑलरेडी गेटिंग ऑल दैट इम्पोर्टेंस, बट आई गेस 2 साल के बाद तो फॉर श्योर पाइथन एकदम मैंडेटरी हो जाएगा। अभी फिर भी कुछ कंपनीज पाइथन को डायरेक्टली नहीं यूज कर रही हैं, बट विद इन 2 years एवरी कंपनी विल बी आस्किंग फॉर पाइथन। ये ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, कैन नॉट वी डू द सेम थिंग्स इन सी लैंग्वेज एज इट इज डन इन सी प्रोग्रामिंग? नो, यू कैन नॉट। सी में आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सी इज नॉट मेड फॉर दैट। कभी आपने सुना है कोई वेबसाइट सी में बना है? सी में आप वेबसाइट्स नहीं बना सकते, सी में आप एंड्रॉइड एप्स नहीं बना सकते। For what reason actually? Why we cannot do it? Can you specify some reason then behind that? Okay. See, the thing is कि the purpose of that thing, that language was never application development. तो C जब आया मतलब था, प्रैक्टिकल मतलब एक बात ऐसा होता है ना, वो प्रैक्टिकल जो होता है रीजन उसके one पीछे major होता है ना। reason is one major reason is कि supporting जो data types हैं C में, हाँ वो उतने सही नहीं है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। लाइक यू वुड नोटिस कि वहाँ पे स्ट्रिंग बोल के कोई डेटा टाइप है ही नहीं आज तक, राइट? स्ट्रिंग बोल के कोई डेटा टाइप नहीं है। आई एंड अंडरस्टैंड। when you are building applications, सोच के देखो, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो अपनी लाइफ में, व्हाट्सएप, स्विगी या कोई भी, सबसे ज्यादा यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है अपने एप्लीकेशन से? टेक्सचुअली। और टेक्सचुअल डेटा को सपोर्ट करने के लिए आपको स्ट्रिंग का जरूरत पड़ेगा। सी ऑफ में वो कोर्स। है ही नहीं, राइट? सिमिलरली सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन आते हो, राइट? तो अगेन जब आप एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट, आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर लिख रहे हो जो रियल लाइफ में काम करेगा, राइट? तो उस तरह के सिनेरियोज को आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज द प्रोग्रामिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। उस तरह का आप प्रोसीजरल इसीलिए लोगों ने छोड़ दिया और ओपी में इसलिए मूव कर गया, बिकॉज ओपी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को बेटर हैंडल करता है, राइट? सी में ओपी का फीचर ही नहीं है, इसीलिए फिर सी प्लस प्लस आया था, उसमें ओपी था, राइट? बट सी प्लस प्लस भी बहुत मेजरली यूज नहीं होता, जावा ने उसको ओवरशैडो कर दिया। और अब जो मैंने 4 रीजंस बताए जो आपके स्क्रीन पर है, बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस पाइथन जावा को ओवरशैडो कर रहा है। दैट्स आई द अंडरस्टैंड। होल थिंग। दिस इज द मेजर रीजन फॉर व्हिच यू आर सेइंग टिल नाउ, नो? हाँ, ये अब यस। मैं ये कैन आई स्पीक इन बंगाली? आई एक्चुअली आई एम बिजी इन बंगाली। हाँ See, the thing एक्चुअली is, I don't understand Bengali. तो ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो यही आपका बात है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ exactly. Nutshell हाँ में तो I ये was saying the same thing. हाँ हाँ तो इसके लिए ही मैं आपसे मतलब पूछने में जानकारी ले रहा था, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है ना इसके बारे में, क्योंकि Okay. मेरे को लग रहा था सी में हो सकता है, इसके लिए आई थिंक थॉट टाइप ऑफ थिंग। सो नहीं, सी में नहीं होता है। Okay. थैंक यू वेरी Uh, मच। आई एम वेरी और कोई question, guys? Any other doubts? Okay. Okay, guys. So now let's move on to the machine learning वाला part. I hope Python में आपको roughly समझ में आ गया. Let's start with machine learning. Again, it will be a quick session. Yeah. So can anyone tell me what is machine learning? किसी को भी आइडिया है क्या मशीन लर्निंग क्या है? Anyone? बहुत सुन रहे हो गया आजकल, पिछले लाइक 1-2-3 सालों में मशीन लर्निंग बहुत फेमस हो रहा है। कैन यू टेल मी एनीवन व्हाट इज मशीन लर्निंग? एनीवन, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। कुछ भी आइडिया है आपको व्हाट मशीन लर्निंग इज? ओके, फाइन। सो आई विल शो यू अ डेफिनेशन जो मैंने विकिपीडिया से उठाया है डायरेक्टली, और इट्स अ वेरी एक्यूरेट डेफिनेशन। ओके,
Yes, guys, you will be getting the recording after this session. Don't worry. Okay, guys. So now let's talk about the definition. So machine learning is a field of computer science that uses statistical techniques. Where will we get actually, and which mode we will get the recording after the session is over? Are you asking me for the recordings? Yeah, regarding the recording, I'm asking. You will be getting the recordings. Okay. Okay. So now let's talk about the definition. Machine learning is a field of computer science that uses statistical techniques to give computer systems the ability to learn with data without being explicitly programmed. And this is the most accurate definition on web. मैं जल्दी से इसको समझाता हूँ. So machine learning is a field of computer science, no doubt, right? Or it uses statistics majorly to give computer systems matlab any device which has a processor. It can be your smartphone as well. Okay, it gives computer systems the ability to learn with data. मतलब आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को डेटा प्रोवाइड करते हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, उस डेटा से पैटर्न ड्रॉ करता है और सीखने का ट्राई करता है. ओके, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जब भी आप आज तक आपने कोई भी प्रोग्रामिंग किया है, दैट इज एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, व्हिच मींस फॉर एवरी input you try to explain your machine what the output should be. Like if अगर ये होगा तो else ये होगा, मतलब समझ रहे हो ना? For everything you want to write a program, that is explicit programming. Machine learning में there is no explicit programming. ठीक है, I'll show you one picture जिससे आपको समझ में आएगा कि मेजर डिफरेंस क्या है नॉर्मल प्रोग्रामिंग में और मशीन लर्निंग में. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन द अपर पिक्चर फर्स्ट, द फर्स्ट पिक्चर. ओके, सो नॉर्मली यू मस्ट हैव सीन दिस फ्लो चार्ट, पहले कहीं ना कहीं पे देखा होगा आपने कि होता क्या है कि आपके पास एक कंप्यूटर होता है, आप उसको एक प्रोग्राम देते हो, लेट्स से ऐड 2 नंबर्स, राइट, और फिर आप उसको कुछ इनपुट देते हो, राइट, जैसे कि 2 नंबर्स दिए आपने 5 और 2, तो फिर प्रोग्राम कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोग्राम के बेसिस पे आपको आउटपुट देगा 7, राइट. ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, आपके पास एक प्रोग्राम है, आप उसको इनपुट देते हो, वो आपको आउटपुट देता है. दिस इज नॉर्मल प्रोग्रामिंग, राइट. मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में यू वुड नोटिस कि आप प्रोग्राम नहीं देते, आप इनपुट देते हो, आप आउटपुट देते हो, राइट. मतलब आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आपका इनपुट टू दिस कंप्यूटर वुड बी 5 and 2, दिस इज योर इनपुट, और 7 आपने आउटपुट भी बता दिया, राइट. फिर आपने एक और पीस ऑफ डेटा दिया 10 और 5, और आपने ये भी बता दिया कि आंसर इज 15. सिमिलरली आपने दिया 10 20 20, और फिर आपने आंसर फिर से बता दिया कि इट्स 50. तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ सम एल्गोरिदम द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड कि ओके तुम एडिशन कर रहे हो, और वो लॉजिक जनरेट कर देगा. और अब उसने जैसे ही लॉजिक जनरेट कर दिया, जब आप उसको नया इनपुट दोगे, अब वो आउटपुट कैलकुलेट करके देगा. दैट्स द मेन डिफरेंस. ओके, नाउ कैसे ये बेटर है नॉर्मल प्रोग्रामिंग से, आई विल टेल यू. अगर आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें आप 2 नंबर्स को ऐड करने का कोड लिख के बैठे हो, अगर वहां पर किसी ने 3 नंबर्स दे दिए लेट्स से, या 4 नंबर्स दे दिए, तो ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, राइट. बिकॉज आपका प्रोग्राम कितने नंबर्स को हैंडल करने के लिए बैठा है, 2 नंबर्स को, बट आपने 4 दे दिया तो क्रैश कर जाएगा, या आपने 1 नंबर दिया तो क्रैश कर जाएगा, राइट. बट मशीन लर्निंग में सिंस उसने लॉजिक अंदर से डेवलप किया, तो अब वो समझ गया है कि एडिशन करना है, मुझे जितने भी इनपुट्स मिलेंगे मुझे ऐड करना है. तो अगर आप उसको 10 नंबर्स दोगे तब भी वो ऐड कर देगा, अगर आप उसको 2 नंबर्स दोगे तब भी वो ऐड कर देगा, राइट. सो अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहो, तो दिस गाय, द फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज लाइक आई डोंट नो, एक ऐसा बच्चा जो एग्जाम में रट के गया, मतलब उसने बस बाय हार्ट सब कुछ याद कर लिया और फिर वो एग्जाम में बैठ रहा है. तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन थोड़ा भी बाहर से आएगा तो इसका परफॉर्मेंस खराब होगा, राइट. बट मशीन लर्निंग इज दैट गाय, ये एक ऐसा बच्चा है जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाता है, राइट. और ऑब्वियसली जब भी इससे बाहर से भी क्वेश्चन पूछोगे तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है. एंड दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच आज की डेट में इंडस्ट्री में हर बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी मशीन लर्निंग डिमांड कर रहा है, राइट. मशीन लर्निंग सबको चाहिए, सबको डेटा साइंटिस्ट चाहिए, सबको मशीन लर्निंग इंजीनियर्स चाहिए. व्हाई? बिकॉज यू कैन इजिली सी, ये छोटा सा डिस्कशन के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि मशीन लर्निंग is much better than normal programming. और 10 साल बाद आई डोंट नो, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग शायद रहे ना, क्योंकि मशीन लर्निंग इंटरनली सब कुछ हैंडल कर पाए, ठीक है. अगेन इट्स अ फार फेच्ड थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट यू नेवर नो, ठीक है.
तो ये तो समझ में आ गया गाइस. लाइक कैन यू टेल मी अगेन, इट्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. आपको ये समझ में आ गया कि मशीन लर्निंग क्या है. I'll ask you a different question. The question is this कि machine learning और artificial intelligence ये सारे concepts 1950s में भी थे. Machines intelligent होंगे, robots बनेंगे, ये सारा concepts आपको बहुत सारी पुरानी movies में दिखेगा, right? But what is the reason कि अब finally 2020 में, 2018 में, 2019 में जाकर के this thing is getting so famous. मतलब अभी क्या ऐसा different हो रहा है? मतलब I guess I'm able to explain the question. The question is कि machine learning अभी क्यों famous हो रहा है जब ये इतना पुराना concept है? तो कोई बता सकता है? What do you think is the reason? Suddenly famous होने का reason क्या है? Anyone? आप chat पे type कर सकते हो. So I think that the usage of Jio is providing us more and more network. So the network thing is like free for everyone. So because of that, it is available everywhere. So it can reach everywhere. So Correct. Perfect answer. In fact, there are two major reasons. To be honest, अगर आपको इस question का answer करना है, तो there are two reasons. और वो इस definition में आपको दिख जाएगा. So you can easily see हमारे definition में there was this thing: machine learning is a field of computer science that uses statistical techniques to give computer systems the ability to learn with data. Right? Machine learning में सबसे important चीज होता है data. सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अगर आपके पास एक बहुत सही एल्गोरिदम है, बहुत किक-एस एल्गोरिदम है, और एक अपने पास वीक एल्गोरिदम है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता. देयर आर टू मेथड्स, टू एल्गोरिदम्स. दिस इज एल्गोरिदम 1, वेरी पावरफुल, वेरी गुड, राइट? एंड देयर इज अनदर एल्गोरिदम व्हिच इज अ वीक एल्गोरिदम. बट जो स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है उसके पास बहुत कम डेटा है, और जो वीक एल्गोरिदम है उसके पास बहुत ज्यादा डेटा है. व्हाट डू यू थिंक, किसका परफॉर्मेंस बेटर होगा? मशीन लर्निंग में इट्स अ फेमस फैक्ट कि घटिया एल्गोरिदम ज्यादा डेटा के साथ बीट कर देता है अच्छे एल्गोरिदम को विथ कम डेटा. मतलब इट्स अ फैक्ट. सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट. और डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब जाकर के मशीन लर्निंग फेमस हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो एंड दिस इन जनरल जो रिवॉल्यूशन आया है, 3G 4G या 5G आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच इंटरनेट यूसेज सस्ता हो गया है, स्पीड फास्ट हो गया है, और बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं इंटरनेट पे जो अच्छे प्रोडक्ट सेल कर रही हैं. तो लोग जा रहे हैं और डेटा जनरेट कर रहे हैं. इमेजिन यार, आप अकेले एक दिन में कितना डेटा जनरेट करते होगे. व्हाट्सएप पे इतने सारे चैट करते हो, इंस्टाग्राम पे इतना स्क्रॉल करते हो, चीजों को लाइक करते हो. यू कैन सी आप एक आदमी कितना डेटा जनरेट कर रहा है दिन भर में, राइट? इमेजिन पूरे दुनिया के लोग दिन भर में कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं. डेटा के बारे में एक डेटा है, आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से डिजिटल डिवाइसेस हम लोग यूज करने लगे, तब से लेकर के 2015 तक हमने जितना डेटा जनरेट किया, लेट्स कॉल दैट XGB, हमने एग्जैक्टली उतना ही डेटा जनरेट किया बिटवीन 2015 एंड 2016. ये एक बार समझने का ट्राई करना. जब से हम लोग डिजिटल डिवाइसेस यूज करना स्टार्ट किए, तो हम चीजों को स्टोर कर रहे थे. तो स्टोरेज कैसे होता है? फ्लॉपी डिस्क, किसी भी चीज में स्टोरेज होता है. तो वो जो पूरा स्टोरेज है शुरू से लेकर के 2015 तक, लेट्स कॉल दैट XGB. ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा नंबर होगा, बट हमने उतना ही डेटा अगले एक साल में जनरेट कर दिया, अगेन XGB. मतलब शुरू से लेकर 2016 तक कितना हो गया? 2x, राइट? अब मैंने 2016 से 2017 में फिर से कितना जनरेट कर दिया? 2x. मतलब अब 4x हो गया. तो इस स्पीड से हम लोग का डेटा बढ़ रहा है. इट्स एक्सपोनेंशियल, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अब ये जो कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, Amazon, ये लोग बहुत इजीली मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट कर पा रहा है बिकॉज दे हैव सो मच डेटा, राइट? द सेकेंड रीजन इज कि आपका हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग हो गया. पास्ट में भी डेटा था कुछ चीजों के ऊपर, बट वो लोग रन नहीं कर पाते थे बिकॉज उस टाइम के जो हार्डवेयर था, मशीन्स थी, उनका प्रोसेसर स्पीड और रैम ये सब बहुत लिमिटेड था, और आपके एल्गोरिदम्स चल नहीं पाते थे, राइट? इसीलिए काम नहीं हो पाता था. बट अब यू वुड नोटिस स्मार्टफोन रिवोल्यूशन आया हुआ है. आपके पॉकेट में एक फोन होगा जो 6GB रैम होगा उसमें, या 8GB रैम होगा, यू नेवर नो, राइट? और जितना मेरे को याद है, 70s में कोई एक पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च के टाइम पे नासा ने 20, आई डोंट नो, शायद
256 KB रैम में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था. मतलब इन कंपैरिजन टू दैट हमारे पास चैट करने के लिए 6 GB ऑफ रैम है. तो कंप्यूटेशन बहुत बढ़ गया है, राइट? और कंप्यूटेशन प्लस डेटा, ये दो रीजंस की वजह से मशीन लर्निंग इज गेटिंग वेरी वेरी फेमस आज की डेट में. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन शो यू गूगल ट्रेंड्स मशीन लर्निंग का, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि क्या चल रहा है. सो आई विल रिमूव दिस वन. I'll also remove Python, and I'll instead search for machine learning field of study. Actually directly machine learning कोई search करता नहीं है, so let's see क्या आता है. Okay, yeah, so guys you can see this. In fact एक काम करते हैं, पिछले 5 साल के बदले 2004 से सेलेक्ट करते हैं. सी, यही मैं बोल रहा था. बहुत दिनों तक कुछ कुछ बीच में होता रहा जिसकी वजह से कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था, और फिर मोस्टली द कर्व इज फ्लैट, मोस्टली इट्स फ्लैटर. एंड यहां पे देखो आप 2014 अराउंड से, जब से डीप लर्निंग वगैरह आया, नाउ दिस कर्व इज एक्सपोनेंशियल, लाइक बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है. एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि पिछले 3-4 सालों में एवरीवन इज गोइंग क्रेजी अबाउट मशीन लर्निंग. सो ये आपको गूगल ट्रेंड्स पे भी समझ में आ रहा होगा. इनफैक्ट एक काम करते हैं, rather than selecting India, let's select worldwide to see चल क्या रहा है पूरी दुनिया में. And you can see again same curve. ये end में dip is again because of coronavirus, but again that is not going to be permanent. वो होने से रहा, but again the same thing. तो यार दुनिया में भी चल रहा है और इंडिया में भी चल रहा है, and we can totally see this. If you talk about the world map, I'm feeling really good. The most blue region is India. This is new for me. ये मेरे को भी नहीं पता था. So India में बहुत यूज हो रहा है, US कनाडा में बहुत यूज हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत यूज हो रहा है, चाइना में बहुत यूज हो रहा है. आई होप चाइना वाले ज्यादा यूज ना करें. So guys, again हमने देखा थ्रू गूगल ट्रेंड्स की मशीन लर्निंग इज यूज्ड अ लॉट. नाउ व्हाट आई विल डू इज, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, हम दो चीजें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ यूज होता है, सो दैट आपको आइडिया लगे कि फ्यूचर में जब आप काम करोगे तो कौन सी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो. सेकंड, मशीन लर्निंग कैसे सीख सकते हो. ये दो चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, सो गाइस कोई बता सकते हो, लाइक कैन यू टेल मी वन एग्जांपल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और एनी प्रोडक्ट दैट यू यूज जो आपको लगता है मशीन लर्निंग यूज करता हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता हो. एनी प्रोडक्ट दैट यू यूज, एनी सॉफ्टवेयर. Again so that we can start our discussion. Okay, किसी ने टाइप किया. Facebook, Google Assistant is a good example. Google Assistant is a chat bot. It's a piece of software जो आपसे chat कर सकता है. तो again it's a example of machine learning AI, right? YouTube में अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको राइट साइड में ये दिखाता है recommended videos. तो YouTube पे करोड़ों वीडियोस हैं यार. इस वीडियो के साथ ये वीडियो क्यों दिखाना चाहिए, ये कौन डिसीजन ले रहा है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. कोई भी मैनुअली नहीं कर रहा है, ठीक है. फेसबुक आपको सजेस्ट करता है कि किसको फ्रेंड बनाना है, या ऑटोमेटिकली आपके पिक्चर्स को टैग कर देता है इमेज प्रोसेसिंग यूज करके. तो अगेन इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग, राइट. तो अभी आपने जो भी एग्जांपल्स दिए, दीज आर मोस्टली कंज्यूमर बेस्ड एग्जांपल्स, जहां पर कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर रहा है. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स जहां पर कंपनीज कैसे यूज कर रही है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. यहाँ पर 6-7 एग्जांपल्स हैं. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं सारा डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं कुछ अच्छे वाले आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको सच में समझ में आएगा कि कंपनीज आर यूजिंग मशीन लर्निंग क्वाइट अ लॉट और उनको बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद दिस सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस. ओके, सो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है कि अगर आप अपने मशीन लर्निंग कोड को एक सेंटेंस दो या एक पैराग्राफ दो, तो उस पैराग्राफ को देख करके आपका मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है वो बता सकता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव था या नेगेटिव था उस जिसने भी वो टेक्स्ट लिखा. जैसे कि एग्जांपल है, अगर आप मूवी का रिव्यू लिख रहे हो तो आपका सेंटिमेंट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा मूवी के लिए, राइट. अब ये कोई ह्यूमन बीइंग पढ़ के बता सकता है कि हाँ यार इसमें तो तुमने कुछ नेगेटिव बोला है,
बट ये सेम काम आप एक एल्गोरिदम से भी करवा सकते हो. इसको हम बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, राइट. इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, NLP. उसके अंडर में ये चीज होता है सेंटिमेंट एनालिसिस, एंड यूजिंग दिस यू कैन फाइंड द सेंटिमेंट ऑफ अ पैराग्राफ. ओके, अब इसको ट्विटर ने कैसे यूज किया मैं ये आपको बताने वाला हूँ. सो ट्विटर इज अ वेरी फेमस कंपनी, यू शुड बी अवेयर ऑफ ट्विटर, राइट. सो ट्विटर 2008 में लॉन्च हुआ था, मतलब एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट. और इट्स अ फेमस कंपनी, राइट, एवरीवन यूजेस इट वर्ल्ड वाइड. तो ट्विटर का प्रॉब्लम क्या था कि ट्विटर ने 2016 तक कभी पैसा नहीं कमाया, मतलब दे वर नॉट अर्निंग कुछ भी. तो उनके जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैसा लगा रखा था ट्विटर के ऊपर सो दैट ट्विटर अच्छा करे, वो लोग को टेंशन होने लगा कि गूगल 2 साल में पैसा कमाने लग गया, फेसबुक 4 साल में पैसा कमाने लग गया, तुम्हारा 8 साल हो गया, तुमने अभी तक पैसा नहीं कमाया. तो देवर पुलिंग आउट देयर मनी कि यार डर लग रहा है और पैसा नहीं लगाएंगे, राइट. अब ट्विटर के जो मेन बंदे थे, जो फाउंडर्स थे, जो कोर टीम थी, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने प्लान किया कि चलो हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स डालते हैं, जैसे फेसबुक डालता है या गूगल डालता है. अब उन लोगों ने जब ये ट्राई किया तो दे रियलाइज्ड कि उनके यूजर्स कम होने लग गए, राइट. कम क्यों होने लग गए? बिकॉज ट्विटर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. यहाँ पे सेलिब्रिटीज होते हैं और उनके फॉलोअर्स होते हैं. सो जैसे आपने ऐड डालना स्टार्ट किया, आपके सेलिब्रिटीज छोड़ने लग गए प्लेटफॉर्म्स, मतलब कम यूज करने लग गए, और फिर आपका यूजर्स भी पीछे पीछे छोड़ने लग गए, फॉलोअर्स भी छोड़ने लग गए. तो जैसे ही ट्विटर को दिखा कि देयर इज अ डिप, वो लोग डर गए कि यार ऐसे तो और गड़बड़ हो जाएगा, बहुत पहले ही ट्विटर बंद हो जाएगा. तो उन्होंने बोला ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ और प्लान करना पड़ेगा, कुछ और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो ट्विटर ने फिर एक बहुत स्मार्ट सोल्यूशन निकाला, एंड वो सोल्यूशन का हम लोग बात करने वाले हैं. एंड जब आप ये पूरा सुनोगे यू वुड एक्चुअली फील कि इट्स अ स्मार्ट थिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है. सो ट्विटर ने क्या किया कि ट्विटर ने एक पर्टिकुलर हैशटैग पर जितने भी ट्वीट्स आते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर इंडिया में इलेक्शन हुआ, तो जितने भी ट्वीट्स आए इंडियन इलेक्शन 2019 के ऊपर, ट्विटर ने सबको उठा करके एक जगह पे लेके आया. लेट्स से 1 करोड़ ट्वीट्स थे, 1 करोड़. अब ट्विटर ने उससे क्वेश्चन पूछा, हर ट्वीट से क्वेश्चन पूछा. लेट्स से ट्विटर ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये पर्टिकुलर ट्वीट जो हम जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर ट्वीट के ऊपर सेंटिमेंट कैसा है जिसने ट्वीट लिखा अबाउट नरेंद्र मोदी. मतलब इज दिस ट्वीट हैज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट अबाउट नरेंद्र मोदी और नॉट. लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास अगर एक ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ही शुड बिकम आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगर ये ट्वीट है तो ऑब्वियसली इसका सेंटिमेंट कैसा है? पॉजिटिव नरेंद्र मोदी के लिए. सिमिलरली इफ देयर इज अ ट्वीट जिसमें लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट थिंक ही शुड बिकम आवर प्राइम मिनिस्टर अगेन, लाइक दिस इज अ ट्वीट, तो ऑब्वियसली अब ये सेंटिमेंट कैसा है? नेगेटिव है, राइट. तो ट्विटर ने क्या किया, 1 करोड़ ट्वीट्स को उठाया और अपना हर ट्वीट के ऊपर ये एल्गोरिदम को चलाया, राइट. और जैसे इस एल्गोरिदम को चलाया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि पता चल गया कि कितने ट्वीट्स पॉजिटिव थे, कितने ट्वीट्स नेगेटिव थे. सो लेट्स से अगेन अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, लेट्स से 60% ट्वीट्स बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पॉजिटिव और 40% ट्वीट्स बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी नेगेटिव, राइट. तो अब मेरे पास ये क्लियर कट डेटा है कि इंडिया में 60% लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने आउट ऑफ 1 करोड़ पीपल, दैट इज 60 lakhs, और 40 lakhs लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सीएम ना बने, पीएम ना बने, राइट. तो गाइस डोंट यू थिंक ये बहुत एक्यूरेट डेटा है? क्योंकि सोच के देखो, आप जो जाकर के सोशल मीडिया पे लिखते हो, आप वही तो लिखते हो जो आप बिलीव करते हो, राइट. अगर मैंने ट्विटर पे जाके लिख दिया कि यार मैं फैन हूं नरेंद्र मोदी का, तो मैं जाकर के वोट किसको करूंगा? नरेंद्र मोदी को ही तो करूंगा, राइट. तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि जो 60 लाख लोगों ने बोला कि नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, वो जाकर के वोट भी किसको करेंगे? नरेंद्र मोदी को. तो डोंट यू थिंक मेरे पास एक छोटा ओपिनियन पोल आ गया, राइट. मेरे पास ओपिनियन पोल का डेटा है इलेक्शन होने के पहले, राइट. तो कैन यू टेल मी ये डेटा आप कहां पे सेल करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर आप ट्विटर हो तो? कैन यू टेल मी कहां पे ये डेटा सेल करने से यू कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट? एनीवन? आप अगर ये डेटा आपके पास होता इलेक्शन के पहले तो किसको सेल करते? मीडिया. मीडिया
यार मीडिया उतना पैसा नहीं दे पाएगा आपको। हम ट्विटर के स्केल का बात कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक आज तक हमको पैसा दे पाएगा उतना जितना हमें चाहिए? और कुछ? इट्स नॉट मीडिया एक्चुअली। इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई भी जीते, दे हैव टू बी अनबायस्ड। थोड़ा और सोचो। ओपोनेंट पार्टी को ऑलरेडी पता है वो लोग हारने वाले हैं। गूगल, अभी तक सही आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा और ट्राई करो। कोई और एक जगह है जहां पर आप बेच सकते हो उसको, जहां से आपको बहुत पैसा मिलेगा। आई एम वेटिंग। कोई और आंसर? डार्क वेब। डार्क वेब पे बेचेंगे? डार्क वेब का तो यार कोई आइडिया नहीं है मेरे को। चलो मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे बेचोगे। आप ये डेटा बेचोगे शेयर मार्केट में। आप किसको बेचोगे? देर आर सर्टेन कंपनीज, आई डोंट नो आपने नाम सुना है कि नहीं। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये सारी कंपनीज हैं। ये कंपनीज को हम बोलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं। इनका काम क्या होता है? ये लोग बहुत अमीर लोगों से पैसा उठाते हैं और उनका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। फिर जो प्रॉफिट होता है उसका एक परसेंटेज अपने पास रखते हैं और बाकी उस बंदे को लौटा देते हैं। इनका काम यही है। इंडिया में भी ये लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से लोगों को हायर करते हैं, बिकॉज इनको डिसीजन मेकिंग करना होता है कि किसका शेयर ऊपर जाएगा, किसका शेयर नीचे जाएगा। राइट, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है। राइट, तो अब आप क्या करोगे? एज ट्विटर यू विल अप्रोच मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन एंड यू विल से कि सी मेरे पास कंक्लूसिव डेटा है कि बीजेपी जीतने वाला है इंडिया में, एंड आई कैन गेट यू, आई कैन गिव यू दैट डेटा। अब वो आपसे डेटा खरीद लेगा। राइट, और अब वो क्या करेगा सोच के बताओ। अगर आप जेपी मॉर्गन की जगह पर हो जो शेयर्स खरीदता और बेचता है, तो अगर आपको इलेक्शन के पहले पता चल जाए कि बीजेपी जीतने वाला है, तो आप क्या करोगे उस इंफॉर्मेशन से? किसके शेयर्स खरीदोगे आप? किसके शेयर्स खरीदने पे फायदा है? एनीवन? सी, आप उस कंपनी के शेयर खरीदोगे जिसके बारे में सबको पता है कि दैट पर्टिकुलर कंपनी इज बैक्ड बाय बीजेपी। आपको पता है कि यार ये कंपनी को बीजेपी का सपोर्ट मिला हुआ है, और ये बाकी कंपनीज को भी पता है। हाँ, रिलायंस इज एन एग्जांपल। राइट, जैसे ही मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया, मैं रिलायंस का शेयर खरीदूंगा। अभी वो कम प्राइस पे चल रहा है। जैसे ही इलेक्शन जीतेगी बीजेपी, पब्लिक में सेंटिमेंट आ जाएगा कि बॉस अब तो रिलायंस बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट है, और फिर सभी लोग रिलायंस का शेयर खरीदना चाहेंगे। बट रिलायंस का शेयर किसके पास है? जेपी मॉर्गन के पास। तो वो बढ़ा के बेचेगा, और ये बढ़ा के बेचेगा मतलब ये थोड़ा बढ़ा के नहीं बेचते, करोड़ों में बेचते हैं। राइट, और वो बेच करके वो लोग थोड़ा पैसा उसको देंगे जिससे उन लोगों ने पैसा लिया था, थोड़ा पैसा अपने पास रखेंगे, और एक छोटा कट वो लोग किसको देंगे? ट्विटर को। बिकॉज पैसा किसके पास आया, मतलब डेटा किसके थ्रू आया? ट्विटर के थ्रू। सो यू वुड फोकस ऑन, यू वुड ऑल्सो गिव दैट मनी टू ट्विटर। एंड गेस व्हाट गाइस, ये वाला टेक्निक इंप्लीमेंट करने के बाद से 2016 के बाद से आज तक किसी ने भी नहीं पूछा ट्विटर से कि तुम्हारा बंद होने का सीन तो नहीं है। ट्विटर उसके बाद इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। बिकॉज सोच के देखो, मैं सिर्फ इंडिया का बात कर रहा हूँ, टोटल मिला के 220 कंट्रीज है, और अभी मैं सिर्फ पॉलिटिक्स का बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स होता है, एंटरटेनमेंट होता है, सो देर आर सो मेनी थिंग्स। ट्विटर हर चीज के ऊपर ये चीज अप्लाई करता है और रेलेवेंट डेटा सही जगह पे बेचता है, और उसकी वजह से ट्विटर इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स लाइक यू जो ट्विटर को ये करके देते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके, इन फैक्ट लेट मी शो यू, मेरे पास एक वेब ऐप है जो मैंने बनाया था। मुझे इसके लिए एक बार एक URL विजिट करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। मेरे को एक बार उसका URL निकालना पड़ेगा। आई होप उतना टाइम है आपके पास। ओके, आई विल शो यू कि हमने सेम चीज कैसे किया ट्विटर की तरह, और आप भी कैसे कर सकते हो। एक्चुअली बस उसका URL मुझे याद नहीं है, और जस्ट 1 सेकेंड गाइस। IMDb dash, yeah, this one.
सो आई विल शेयर दिस लिंक इन चैट ऑल्सो सो दैट आप भी इसको देख पाओ। ये हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है। I'll be sharing this link with everyone in the meeting. You can check out this. So ये क्या है, यहाँ पर आप जैसे ही किसी मूवी का नाम टाइप करते हो ना, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये वेबसाइट IMDb पे जाएगा, उस मूवी से रिलेटेड जितने भी रिव्यूज हैं वो सारे रिव्यूज को वो उठा के लेके आएगा और फिर उन सबके ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस अप्लाई करके बताएगा कि वो रिव्यू का सेंटिमेंट पॉजिटिव है उस मूवी के बारे में या नेगेटिव है, राइट। सो आई विल शो यू। जैसे लेट्स से हमने सर्च किया इंसेप्शन के बारे में, या आई कैन सर्च फॉर कोई ऐसा मूवी जिसमें नेगेटिव रिव्यूज हों। चलो इंसेप्शन ही सर्च करते हैं, ठीक है। इंसेप्शन को जैसे मैंने सर्च किया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज ये फ्री सर्वर पे होस्टेड है। एनीवेज, सो ये देखो, ये हो गया IMDb स्कोर इंसेप्शन का। ये सारा पोस्टर वोस्टर हम लोग IMDb से उठा करके ला रहे हैं, और ये है सेंटिमेंट स्कोर जो हम जनरेट कर रहे हैं 6.4। मतलब अगर आप 100 रिव्यूज उठा रहे हो तो उसमें से 64 रिव्यूज पॉजिटिव हैं, 36 रिव्यूज नेगेटिव है। और ये देखो पूरा लिस्ट, ये देखो जब भी आपको ग्रीन कलर का टेक्स्ट दिखेगा दिस इज अ पॉजिटिव रिव्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, अ वन इन अ काइंड माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस, नाम से समझ में आ रहा है। थोड़ा नीचे जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ये देखो, जैसे कि ये वाला रिव्यू देखो, ये बोल रहा है इंसेप्शन हैज अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड इट डजंट डू एनीथिंग विद देम। और ये देखो पूरा रेड में है, तो मेरे कोड ने इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉस ये नेगेटिव सेंटिमेंट है, राइट। सिमिलरली मैं थोड़ा और नीचे जाऊं, देखो ये सारा अच्छा है। फिर से देखो, यहाँ पे देखो, यू आर नॉट एज स्टूपिड एज क्रिस्टोफर नोलान थिंक्स यू आर, 3 out of 10। और उसका टेक्स्ट आप फिर से पढ़ो, so you can see again it's a negative review, ठीक है। and guys, हम ये रेड और ग्रीन करने में ये रेटिंग को कंसिडर नहीं कर रहे। so if you are thinking कि अगर 5 से कम है तो उसको रेड कर दिया, नहीं। internally we are doing sentiment analysis and it is independent of this rating, okay। मतलब अगर ये रेटिंग यहाँ पे नहीं भी होता तो भी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते because of sentiment analysis। see the pointless film, again a red। so ये पूरा का पूरा चीज हमने किया हर रिव्यू के ऊपर। So this is one example, और ट्विटर exactly यही कर रहा है। नहीं अभिजीत, ये certain keywords के ऊपर काम नहीं कर रहा, ये actually हर word के ऊपर काम कर रहा है। जितने भी reviews हैं, उन reviews में जितने भी words हैं, हम सबके ऊपर analysis कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बाद में आप ये कर सकते हो कि आप most used 3000 words के ऊपर फोकस करो, या most used 5000 words के ऊपर फोकस करो। जैसे जब हमने इस मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया था एक डेटा सेट के ऊपर 50,000 मूवीज के रिव्यू के ऊपर, देयर वर 35,000 यूनिक वर्ड्स, राइट। हमने 35,000 यूनिक वर्ड्स के ऊपर इसको ट्रेन किया था, राइट। और तब जाकर के ये अभी इस मॉडल का एक्यूरेसी इज अराउंड 92%। मतलब अगर आप इसको 92 रिव्यूज दोगे, सॉरी अगर आप इसको 100 रिव्यूज दोगे तो ये 92% टाइम्स एज इन 92 रिव्यूज में सही बताएगा, 8 बार गलती करता है। बट यू कैन सी अगेन इट्स अ वेरी एक्यूरेट सिस्टम, आप खुद पढ़ के देखो। इनफैक्ट आपको मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है, यहाँ पर आप कोई भी मूवी डालो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से आपने डाला 3 इडियट्स, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, लाइक 3 इडियट्स, इसका सेंटिमेंट स्कोर है 6.8। और ये देखो यहाँ पे इसने गलती किया, वाओ दिस अमेरिकन लव्स दिस मूवी, आई आस्क्ड माय को, जो भी है ये सेंटिमेंट वाज गुड बट हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे गलती कर रहा है, ये इसको रेड बता रहा है, ठीक है, क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है। अगेन देखो यहाँ भी गलती कर रहा है, तो गलतियां करेगा बट अगेन यू हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम धीरे धीरे। जैसे ये अभी एक स्टूडेंट ने बनाया और वो बहुत बेसिक लेवल पे उसने बनाया, और इट हैज गॉट 92% एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये मेरे को आपको दिखाना था, आप इसको एक बार जाके चेक करना, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। और अब मैं आपको यार एक दो चीजें और बताता हूँ बस, उसके बाद विल हैव टू क्लोज दिस सेशन। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है डिमांड फॉरकास्टिंग। सो अगर आपने उबर यूज किया होगा या ओला यूज किया होगा पहले, अब तो कोई नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि एक चीज होता है सर्ज प्राइसिंग बोल करके। मतलब ओला का प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का टाइम के साथ वैरी करता है, मतलब शाम में ज्यादा होता है, दोपहर में कम होता है। नोटिस किया होगा ये वाला चीज। एक बार मैं सेक्टर 5 से हावड़ा जा रहा था, मुझे 800 बता रहा था,
800, राइट? तो ये सर्च प्राइसिंग का क्या सीन है वो मैं आपको समझाता हूँ. सो एक बार मैं उबर ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था और उबर ड्राइवर ने अपना फोन रखा हुआ था नेविगेट करने के लिए, और सामने में मैंने उसका नोटिस किया कि उसका जो ऐप था, आपने नोटिस किया होगा ड्राइवर्स का अलग ऐप होता है, कंज्यूमर्स का अलग ऐप होता है. तो मैंने नोटिस किया उसके ऐप में, उबर के ऐप में देयर वाज दिस हीट मैप सॉर्ट ऑफ, मतलब आई विल शो यू, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा. उबर ड्राइवर ऐप हीट मैप, लेट मी सी ये इमेज आता है कि नहीं. हाँ गाइस आ रहा है शायद. यस, समथिंग लाइक दिस. उसका ऐप ऐसा दिख रहा था मुझे. मैं कोलकाता में था उस टाइम, तो मुझे ये दिखाई दिया कि उसके ऐप में मैप के ऊपर सर्टेन एरियाज वर रेड. तो मैंने उससे पूछा भैया ये रेड क्यों है? तो उसने बोला कि अगर मैं अगले 10 मिनट में इस एरिया में पहुंचूंगा तो मुझे उबर डबल इंसेंटिव देगा, डबल. तो होता क्या है, ये एरिया रेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिमांड है बट उतने कैब्स नहीं है. तो उबर का एल्गोरिदम क्या करता है, आसपास वाले जितने भी कैब्स हैं उनको दिखाता है कि ये एरिया रेड है, यहाँ पर पहुंचो, तुमको डबल प्रॉफिट होगा. तो ऑटोमेटिकली कैब ड्राइवर्स यहाँ पे आएंगे. अब उबर को इनको डबल पैसा देना है, तो वो डबल पैसा कहाँ से देगा? सोच के देखो, उबर अपनी जेब से तो देगा नहीं, राइट? तो वो पैसा आपसे लेता है और आपको बता देता है कि देख लो बॉस, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और हमारे पास उतनी कैब्स नहीं है, तो तुम अगर बोलोगे, अग्री करोगे पैसा देने के लिए, तो मैं दूर से कैब्स को बुला देता हूँ. एंड दैट इज व्हाट उबर डज. सो मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था कि यार इतना पैसा क्यों मांग रहे हो, बट जब मैंने ये एल्गोरिदम को समझा तब मेरे को समझ में आया कि उबर एक्चुअली करना क्या चाहता है. उबर चाहता है कि आपको हमेशा राइड मिल जाए और इसके लिए वो आपसे पैसे मांगते हैं. ठीक है, तो आई होप ये वाला डिस्कशन आपको समझ में आया. और ये पूरा चीज अगेन इट्स डन बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. ओके, आई विल डिस्कस वन लास्ट एग्जांपल. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है. सो मैन्युफैक्चरिंग में आपने नोटिस किया होगा कि इंडस्ट्रियल आर्म्स होते हैं, राइट? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर आपने देखी होंगी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखी होगी, कार मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स, समथिंग लाइक दिस. मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ. ये इस तरह के मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं जो लोग कार्स बनाते हैं. ये देखो, सो असेंबली लाइंस होती हैं और असेंबली लाइंस में क्या होता है, हर रोबोट का अलग काम होता है. कोई रोबोट पेंट करता है, कोई रोबोट इंजन फिट करता है, कोई रोबोट पूरा चैसी असेंबल करता है, कोई रोबोट टायर फिट करता है. सो ये सारे रोबोट्स का अपना अपना फंक्शनैलिटी है, राइट? नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल. टेस्ला मोटर्स, वेरी फेमस कंपनी, इलॉन मस्क सीईओ है. टेस्ला मोटर्स का क्रेज बहुत ज्यादा है कार मैन्युफैक्चरिंग में, कार इंडस्ट्री में. इट्स लाइक एप्पल ऑफ कार. मतलब जो इज्जत एप्पल के फोन्स को मिलता है, सेम इज्जत कार्स में टेस्ला मोटर्स को मिलता है यूएस में. तो पहले से बुकिंग हो जाता है इनका, 6-6 महीने पहले बुकिंग हो जाता है. अब इमेजिन कि यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर रोबोट जिसका काम था इंजन फिट करना, वो रोबोट खराब हो गया. तो ऑब्वियसली उस दिन इंडस्ट्री में, उस दिन फैक्ट्री में एक भी कार नहीं बन पाएगा, बिकॉज विदाउट इंजन तो आप कार बनाओगे नहीं, राइट? तो पूरे के पूरे दिन का मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गया, जीरो मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियसली आप डिले करोगे. जब आपने प्रॉमिस किया है कार डिलीवर करने का, उससे आप डिले करोगे, और जब आप डिले करोगे तो कस्टमर आपको गाली देगा और आपका नेगेटिव फीडबैक क्रिएट होगा, और आप ऐसा नहीं चाहते हो एज अ कंपनी, एज अ गुड कंपनी लाइक टेस्ला मोटर्स. सो व्हाट दे डू इज दे फिट सेंसर्स ऑन टॉप ऑफ दीज रोबोट्स जो कॉन्स्टेंटली इनको मेजर करते रहते हैं. जैसे इन रोबोट्स में मोटर्स होते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली उन मोटर्स का टेम्परेचर, उनका आरपीएम, ये सब मेजर करके एक सर्वर पे डालते रहते हो. और जैसे आपको दिखता है कि ओके थोड़ा सा कम हो रहा है ये चीज, मतलब आरपीएम कल 200 था, आज 200 के बदले 199 है, कल 198 हो गया, तो ऑल्दो मोटर अभी खराब नहीं हुआ, बट आपको पहले से समझ में आ रहा है कि ओके कुछ फॉल्ट अकर कर रहा है, तो आप रात में इंजीनियर्स को भेजोगे और उसको पहले से ही ठीक करा दोगे. एंड दिस थिंग इज नोन एज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. मेंटेनेंस क्या होता है? चीज को खराब करने के बाद ठीक करना, राइट? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज कि खराब होने के पहले ही ठीक कर देना, प्रिडिक्शन करना, राइट? एंड अगेन दिस थिंग इज बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग, आईओटी बोल के एक चीज होता है, आईओटी को यूज करके, राइट? तो
ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। मैं आपको मेल में आपको एक और वीडियो सेंड कर दूंगा जहाँ पे मैंने बाकी एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। बट गाइस देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जहाँ पे मशीन लर्निंग इज गेटिंग यूज्ड और कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, सो अब लास्ट 10 मिनट्स में विल डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ यू वांट टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर तो आपको क्या करना चाहिए, राइट? बाय द वे बिफोर दैट आई विल शो यू इंडिया में जॉब सीन क्या है मशीन लर्निंग का। ये एक स्लाइड है जहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट से कटआउट्स निकाले हैं जॉब्स के। ठीक है, तो ये पहला वाला इज फ्रॉम दिस कंपनी इन बेंगलुरु, और इनको एक इंटर्न चाहिए एंड दे आर विलिंग टू पे 3 to 5 lakhs, राइट? दिस कंपनी इज इन नोएडा एंड दे आर in search of a fresher जो machine learning engineer हो, and they are willing to provide him 6 to 10 lakhs. Similarly, 3 years के experience level पे this company, third company in Bengaluru, is willing to provide 10 to 25 lakhs. And the last one is for 8 years of experience, and this company is willing to provide or pay 30 to 50 lakhs. तो guys, salaries बहुत सही है इस point पे machine learning में। क्या salaries हमेशा ऐसी रहेंगी? Do you think हमेशा 30 से 50 लाख रुपए मिलेंगे? क्योंकि आज के डेट में जो लोग जावा में काम कर रहे हैं TCS जैसी कंपनी में, उनका सैलरी है 60,000 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और ये लोग बोल रहे हैं कि 10 से 25 लाख देंगे, मतलब अराउंड 1.5 लाख रुपए पर मंथ, डबल से भी ज्यादा सैलरी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि कंपनीज को इनफ इंजीनियर्स नहीं मिल रहे जिनको मशीन लर्निंग आता हो, तो जो भी उनको मिल रहा है उनके लिए बहुत बिडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, तो प्राइसेस भाग रहे हैं। सोचो ना, बेसिक इकोनॉमिक्स, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, राइट? अब ये लोग कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे हैं कि मशीन लर्निंग बहुत अच्छा, मशीन लर्निंग बहुत अच्छा, और आपके जैसे इंजीनियर सीख रहे हैं। AICT ने एक नया कोर्स बना दिया है मशीन लर्निंग को बोल के, तो 10 साल बाद क्या होगा, खूब सारे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स निकलेंगे। तो उससे क्या होगा कि फिर कंपनीज के पास ऑप्शन होगा, वो चाहो तो आपको हायर कर सकते हैं या किसी और को हायर कर सकते हैं, तो फिर आपका सैलरीज उतना नहीं रहेगा। बट अगला 5-6 साल तक तो आई थिंक, दिस इज माई प्रोडिक्शन, कि सैलरीज बहुत सही है मशीन लर्निंग में। और ये आप कॉन्स्टेंटली आप जाके किसी भी वेबसाइट पर जाके चेक करना, यू वुड फाइंड कि इस तरह की सैलरीज आपको मिल रही है। फ्रेशर्स 6 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं बेंगलुरु में, इट्स अ कॉमन थिंग। ठीक है, तो अगेन इफ यू वुड आस्क मी, आई विल गिव यू सर्टेन लिंक्स, आप जाके चेक कर सकते हो। Meanwhile, let's move on to the last thing, how to become a machine learning engineer. Guys, आपको 4 चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर आपको अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है। द फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज। आपको प्रोग्रामिंग तो करना पड़ेगा, विदाउट प्रोग्रामिंग आप ये काम नहीं कर पाओगे। और प्रोग्रामिंग आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है पाइथन, दूसरा है आर बोल के एक लैंग्वेज है। बट आई वुड से गो फॉर पाइथन, बिकॉज पाइथन एनीवेज विल be the first language of choice for machine learning in like 2 years, ये होने वाला है। ठीक है, तो go for Python, learn Python, and that will be sufficient for software expertise. Next is machine learning के लिए you need mathematics, because machine learning is all algorithm और algorithms are all mathematics. ठीक है, तो mathematics में आपको क्या क्या सीखना चाहिए? You should learn first of all calculus, second statistics, थर्ड प्रोबेबिलिटी, फोर्थ लीनियर एल्जेब्रा, मैट्रिसेस। बाकी कुछ मत पढ़ो, ये 4 चीजें अगर आप पढ़ लोगे सही से। कैलकुलस में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ो, डिफरेंशिएशन पे फोकस करो, और उतना सफिशिएंट है। स्टैटिस्टिक्स में भी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी बेसिक लेवल पढ़ लो, और लीनियर एल्जेब्रा में मैट्रिसेस अच्छे से कवर कर लो। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मशीन लर्निंग, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इज एनालिटिकल स्किल्स, राइट? एनालिटिकल स्किल्स मतलब कॉमन सेंस। आपको कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी होता है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट्स करके यू कैन डेवलप कॉमन सेंस अबाउट द थिंग। ठीक है, फोर्थ इज डोमेन नॉलेज। अगर आपको कभी भी एक प्रेडिक्टर बनाना है, तो आपको ऑब्वियसली जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो उसका आइडिया होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स के डोमेन में काम कर रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स का आइडिया होना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन में हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया होना चाहिए। तो ये 4 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, आई नो मैंने थोड़ा लास्ट में फास्टली कवर किया, इट्स बिकॉज गाइज मेरा एक और सेशन है थोड़ी देर के बाद में, बट यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस एंटायर सेशन, सो यू डोंट हैव टू वरी। नाउ we almost had a discussion of around 1 hour and 15 minutes roughly. So guys, tell me if you have any doubts or any questions related to what we discussed here.
यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग में रजिस्टर किया था एंड दे वर हैविंग दिस डाउट कि ऑनलाइन सेशंस कैसे हैंडल होंगे. तो गाइज आपको क्या मतलब थोड़ा आंसर मिला जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले रजिस्टर किया है? टू बी ऑनेस्ट हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन के एंड देयर इज नो प्रॉब्लम. हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन डेली पढ़ाते हैं, देन वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप. तो व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्स्टेंटली कोई भी क्वेश्चन आप डालो, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. और फिर हमारे पास यूट्यूब चैनल में हम सारे के सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको दे देते हैं, जो आपको एक्चुअल क्लासरूम में भी नहीं मिलेगा. सो जब हमने फीडबैक लिया स्टूडेंट्स का, तो हमें तो ये भी फीडबैक आ रहा है कि ऑनलाइन इज एक्चुअली मच बेटर देन ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट मुझे रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं जो मैं बाद में कभी भी देख सकता हूँ. तो गाइज अगर आपको ये डाउट है तो टू बी ऑनेस्ट अभी आपने एक सेशन लिया, आपको रफली आइडिया लग गया होगा. हम यहाँ पर पूरा एफर्ट मारते हैं कि आपको कभी भी कम ना लगे कि यार आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है. ठीक है, दैट वी रियली टेक प्राइड इन. तो इफ यू हैव सच डाउट्स आप मेरे से थोड़ा बात कर लो अभी, और आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स वट एवर यू हैव रिलेटेड टू दिस ऑनलाइन थिंग. ओके, बाकी लोग जो लोग फर्स्ट टाइम आए हो, गाइज आप लोग को कुछ भी डाउट्स हैं सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो. आपके पास मतलब हमारे पास 5 मिनट्स और हैं, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. वॉट एवर डाउट्स है आप, लाइक कुछ भी डाउट्स हो सकते हैं यार, आप लोग स्टूडेंट्स हो और स्टूडेंट्स को तो डाउट्स होने चाहिए. तो इफ यू हैव सी यार, एक तो यार प्लीज ये शर्माना बंद करो यार. डोंट बी लाइक यार मैं कैसे पूछूं माइक्रोफोन में, व्हाट पीपल विल थिंक. डोंट थिंक लाइक दैट. इफ यू हैव अ डाउट, कोई आपको नहीं जानता यहाँ पे, राइट, और आप थोड़ा डिस्कनेक्ट करके चले जाओगे, आप हम में से किसी से बात भी नहीं करोगे. सो द बेटर थिंग वुड बी कि आपको कोई डाउट था, आपने पूछ लिया और मैंने आपको हेल्प कर दिया. दैट वुड बी अ स्मार्टर थिंग टू डू. ठीक है, तो इतना सोचो मत, राइट. इफ यू हैव अ डाउट एकदम ब्रैश होकर के पूछो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो यार. ठीक है, कुछ लोग चैट में पूछ रहे हैं, सो मैं चैट का हैंडल करता हूँ. मीनवाइल और अगर आपके डाउट्स होंगे तो फिर आई विल हैंडल इट. अंजलि इज आस्किंग मशीन लर्निंग में क्या हमको अपना डोमेन पहले से चूज करना चाहिए? अंजलि टू बी ऑनेस्ट इट्स एन आइडियल थिंग, मतलब अगर आप कर लो तो बहुत अच्छा है. बट सिंस इंडिया में कंपटीशन इतना है ना कि आपने मान लो एक फील्ड सेलेक्ट कर लिया अपने लिए, लेट्स से आपने सेलेक्ट कर लिया हेल्थ केयर, और आप सारे प्रोजेक्ट्स हेल्थ केयर में एक बना रहे हो, बट फ्यूचर में पता चला कि आपके कॉलेज में हेल्थ केयर रिलेटेड कोई कंपनी आई नहीं, तो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा. तो आई वुड से कि आप मल्टीपल डोमेन्स में भी काम करो. अभी आपसे कोई ऐसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए उतना ज्यादा. डोमेन नॉलेज काम कर करके आता है इंडस्ट्री में, ठीक है. तो बाकी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी कि सॉफ्टवेयर आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए. बट डोमेन नॉलेज टू बी ऑनेस्ट मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. ठीक है. Through which mode you will be sending the recorded video? You will be getting a mail from our side. उस मेल में एक YouTube वीडियो का लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हो. ठीक है. स्नेहा इज आस्किंग कि ओके, अगर आपने हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए एनरोल किया है तो मोस्ट लाइकली हम लोग इस वीकेंड से स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग वाला कोर्स. और सेकंड आपने कौन से कोर्स में एनरोल किया मुझे आइडिया नहीं है, सो अभी मैं बता नहीं सकता. बट मशीन लर्निंग का कोर्स वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट दिस वीकेंड. एज अ बिगिनर हाउ कैन वी टीच और लर्न, मतलब तुमको पढ़ाना है या वो सीखना है? शुभम है, मतलब आर यू प्लानिंग टू टीच और लर्न? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, एक बार रिपीट कर दो अपना क्वेश्चन गाइस. और किसी को अगर कोई डाउट है तो बताओ. ओके, सो हाउ कैन वी लर्न पाइथन इजीली? देखो यार, बेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज इज टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स. थोड़ा सा बेसिक सीख लो, बेसिक सिंटेक्स सीख लो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीख लो लाइक ओपी. और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है. आप चाहो तो ट्रेनिंग्स भी कर सकते हो, ट्रेनिंग में थोड़ा जल्दी सीखोगे. और उसके बाद देन यू शुड मूव ऑन टू बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को या तो उसके कॉलेज से जाना जाता है या तो उसके प्रोजेक्ट से जाना जाता है. सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम IIT देन द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इज योर प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो और आई थिंक देन यू विल बी गुड टू गो. ओके, सो समवन इज आस्किंग अबाउट द फीस. गाइज मैं आपको एक URL शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे. जो भी लोग पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है, kindly send something which will guide me through the fees link and everything.
Can you please tell me? Your question is not clear. Can you tell? Can you speak again? मैं बोल रहे थे कि आप मुझे काइंडली मतलब अगर हेल्प कर सकते हैं अगर फीस के बगैर वो डील। फीस के बारे में पूछ रहा हूँ ना? हाँ हाँ अच्छी। हाँ, मैंने ये चैट पे अभी एक लिंक शेयर किया। Yeah, ये में because सारे I don't know, no, because I am very new in this means class हम्म type of thing, सो so that's why I was. आई हैव सेंट यू अ लिंक, ये चेक कर लो। यहाँ पर यू विल फाइंड ऑल द कोर्सेज, क्या पढ़ाया Okay, जाएगा, फीस कितना है, सब कुछ इस पेज पे मिल सब कुछ जाएगा। मिल जाएगा। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक। मिल जाएगा। प्लीज सजेस्ट सम सोर्स। यार, YouTube हैज अ लॉट ऑफ वीडियोस। अगर आपको ऐसा सोर्स चाहिए तो आप YouTube पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक्स, अरित्रो, टू बी ऑनेस्ट, पाइथन के लिए एज सच कोई फेमस बुक नहीं है, क्योंकि पाइथन ने भी उतना टाइम ही स्पेंड नहीं किया फेमस होने के बाद, इसलिए एज सच कोई फेमस बुक नहीं है। वीडियोस के थ्रू ही सीखना बेस्ट है, या क्लासेस के थ्रू सीखना ही बेस्ट है। हाउ कैन वी लर्न सी प्रोग्रामिंग वेरी इजली फ्रॉम बेसिक? देयर इज अ बुक कॉल्ड लेट अस सी। लेट अस सी बोल के एक बुक है, वो पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सी कैसे पढ़ना है। कौशल, कौन सा इंटर्नशिप का बात कर रहे हो, को बताना। गाइस, और कोई क्वेश्चंस हैं आपके? ओके, अंजलि, टू बी ऑनेस्ट नोबडी इज श्योर यार, ये कब ठीक होगा सब कुछ। तो इस पॉइंट पे वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन ऑनलाइन क्लासेस ओनली। सो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी शेड्यूल। आई डोंट नो, प्रोबेबली आफ्टर अगस्त। तो ये समर ट्रेनिंग ऑफलाइन शायद ना हो पाए, देयर इज एन आउटसाइड चांस, इसलिए हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन अगर कभी भी होगा, डिसाइड होंगे, तो हम लोग आपको मेल कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। शारान्या, पाइथन का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। वन मोर बैच विल बी स्टार्टिंग इन लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, ठीक है। जैसे ही सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें एनरोल कर जाते हैं, अराउंड 20-25, हम लोग बैच स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्स्टेंटली हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही नया बैच स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और या फिर आपके सीआर जो आपके कॉलेज में है वो आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, सो समवन वाज आस्किंग कि कैसे पता चलेगा यूट्यूब पे कौन सा वीडियो अच्छा है। यार, लाइक्स देखो, लाइक से समझ में आता है, और कमेंट्स पढ़ लो थोड़ा पहले वीडियो देखने के। और जनरली एक वीडियो अगर अच्छा है तो उस चैनल के और भी वीडियोस अच्छे होंगे। ये सिंपल लॉजिक से आप यूट्यूब ब्राउज करते हो, ये तो सभी को प्रॉब्लम फेस करते ही हो। No, not all videos are available. Actually, all of those videos are available, but they are private. Private in the sense कि जिसने जो सेशन किया है वही उस वीडियो को एक्सेस कर सकता है। जैसे आपने ये सेशन किया है ना, तो आप ये वाला वीडियो एक्सेस कर सकते हो, बट आप दूसरे वीडियोस एक्सेस नहीं कर सकते। ये हम लोग करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सर्टेन सेशंस आर पेड, तो वो सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, सॉरी। Abhijit, it will be starting from this weekend on machine learning, next batch. Obviously, Aritro, you should do internships after the course. That's the normal workflow. आपको training करना चाहिए, फिर आपको projects बनाने चाहिए, और फिर एक अच्छा प्रोफाइल बना करके internships के लिए आपको लगना चाहिए, right? और internships हमारे कंपनी में भी अवेलेबल है। हम भी हमारे जो बेस्ट ट्रेन्ड स्टूडेंट्स होते हैं हर बैच के, हम उनको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको भी दिखाया, ये हमारे एक इंटर्न ने ही बनाया है हमारे लिए ये प्रोजेक्ट, और अब ये प्रोजेक्ट हम लोग आगे ट्रेनिंग्स में कराएंगे। तो इंटर्नशिप्स तो यार ऑब्वियसली इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंटर्नशिप्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इफ यू आर आस्किंग कि हम प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, तो मैंने बता दिया कि हर बैच में वी सेलेक्ट सर्टेन स्टूडेंट्स जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, और हम उनको फिर इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, ठीक है।
Guys, so I have to close this session, but before that, what I'll do is I'll give you my name. My name is Nitish, and my WhatsApp number. So if you have any doubts, you can contact me directly on WhatsApp. Okay, I'll try to solve your problem. Okay, so I hope I was able to help you in some way. एक घंटा आपने spend किया अपनी life का, शायद कुछ फायदा हुआ. So thanks for coming. It was a great experience. Hopefully we'll meet again. Okay. So chalo, bye.